Hello everyone, welcome back. Today is our day 4 in Cancun. Right now time is 6:30 in the morning and we are going today to explore world of Mayan ruins. Here we all are waiting for our bus. So let's talk about little our tour. Our tour what we booked is Zishin Deluxe Tour. In this tour you will get transportation that will pick you from the hotel zone and take you on a round trip to the archaeological site. You get a certified guide throughout the entire tour. In this tour we are going to visit archaeological site of Chichen Itza and the beautiful city of Valladolid where we are going to enjoy Mexican buffet. And at the end we will visit Excan Cenote. It's a natural freshwater sinkhole where we can swim. For this trip, the amount we paid you can see on your screen. This deluxe trip price includes round-trip transportation in a bus with AC washrooms, light breakfast on the bus, admission ticket of Chichen Itza archaeological site where you will get sun umbrella, face towel, and reusable water bottles. Soft drinks, water, and beer is provided on the bus. Visit of the beautiful Valladolid city where you will get a regional buffet and life jacket at a cenote. After this, the things you should carry by yourself is a bathing towel, sunscreen, good quality of cap or hat and some light snacks. Let's meet our guide. My name is Thomas. Welcome to Mexico. Welcome to Cancun, Maya Land, Riviera Maya. Because we are going to go to the center of the peninsula, Chichen Itza. Mexico is divided in states. ट्रैवल करते वक्त गाइड ने हमें मायान कल्चर के बारे में और आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाई, जैसे मायान कैलेंडर और मायान अल्फाबेट। आर्कियोलॉजिकल साइट चिचेन इत्जा से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी हमें दिखाई गई और उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी। इसके बाद हमें हमारे गाइड ने कुछ प्योर सिल्वर के लॉकेट्स दिखाए जिसपे मायान अल्फाबेट जो कि आप अपने नाम के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। रास्ते में हमें बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स मिले और जितना हो सका हमने इसको कैप्चर भी किया। थोड़ी देर के बाद ही हम लोगों को हमारे लाइट ब्रेकफास्ट जो कि हमारे डिलक्स ट्रिप में इंक्लूडेड है हमें प्रोवाइड किए गए। अपने ट्रिप की बुकिंग कराते वक्त ही आप इन्हें ब्रेकफास्ट के नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन ऑप्शंस के बारे में इन्हें पहले ही बता दें। आर्कियोलॉजिकल साइट पहुंचने से पहले ही हमें हमारे ट्रांसमीटर दे दिए गए। Volumen, power button. Aquí está el botón de encendido. About cell phone, tablet, regular camera is free. Okay, para la tablet, iPhone, teléfono celular. आर्कियोलॉजिकल साइट पे पहुंचते ही हमें अम्ब्रेला और वाटर बॉटल्स मिल गए। इसके बाद हम लोग निकल गए अपने गाइड के साथ साइट विजिट करने के लिए। हो सके तो आप अपनी बस का नंबर याद रखें या उसका स्नैपशॉट रखें क्योंकि यहाँ सारी बसें एक जैसी हैं। Do you have ticket? नो। अंदर एंट्री के बाद चेकिंग के बाद हमें हमारे टिकट्स प्रोवाइड किए गए। आर्कियोलॉजिकल साइट में अंदर एंटर होते ही हमें यहाँ पर बहुत सारी लोकल शॉप्स नज़र आईं। ये सभी शॉप्स लोकल्स के द्वारा लगाई गई हैं और इस तरह की शॉप्स आपको अंदर साइट विजिट करते हुए भी नज़र आएंगी। मायान रूइंस विजिट करने से पहले हमें हमारे गाइड ने यहाँ का हमें मैप दिखाया और फिर हम आगे रूइंस देखने के लिए बढ़ गए। सबसे पहले हमने विजिट किया द टेम्पल ऑफ द वॉरियर्स। यह एक 40 फीट हाई और 133 फीट वाइड स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ बिग इनफ फॉर लार्ज गैदरिंग। इस जगह का ज़्यादातर यूज़ रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंटर की तरह से होता था। मायान पीपल इस जगह का यूज़ सेरेमोनियल पर्पस और कई तरह के रिचुअल्स के लिए भी करते थे। इस टेम्पल को विजिट करने के बाद हम आगे बढ़ गए मायान बॉल कोर्ट की तरफ। यह एक ओपन स्काई बॉल कोर्ट है।
The Mayan ball court is Chichen Itza is also acoustically perfect. It means that a whisper from one end of the court travels clearly to the other end of the court, being heard by all players. It is so perfect that sound waves are barely ever affected by climate conditions and wind directions. The Mayan played with a very heavy rubber ball, and the ball weighed about 3 to 4 kgs. To hit the ball with your head because it's heavy. They could only play using their shoulders, knees, and elbows. The game could not be played using feet, hands, and head. ये गेम मायान्स के लिए एक रिचुअल जैसा था। वॉल के दोनों साइड पर स्टोन रिंग बनी हुई है, जो कि एक फेदर सरपेंट के घूमे हुए आकार की तरह से बना हुआ है। इन रिंग्स में से ही बॉल निकाल करके प्लेयर्स को गोल करना होता था। जितने यहाँ पर गोल बनाए जाते थे उतने सेक्रीफाइस दिए जाते थे। यहाँ पर ये एक तरीके का रिचुअल होता था जिससे वो गॉड से कनेक्टेड रहते थे। सेक्रीफाइस उनके गॉड को हारने वाली टीम के लीडर का या कभी पूरी टीम का दिया जाता था। ये गेम किस तरीके से खेला जाता था और किस तरीके से सेक्रीफाइस दिया जाता था, इसके सीन दोनों साइड बॉल कोर्ट के वॉल्स पे आप क्लियरली देख सकते हैं। Side view, facing north. Why standing like this? Not like this. Like this to symbolize the movement. Take a look. Okay. Take a look at the beautiful shoes. This is first one, second one, third one, fourth one. Just outside the court, we find the Zumpanthi, loosely translated as a skull rack. This is a wall which is covered entirely in a skull carving. Usually these skulls belong to war captives or sacrificial victims. इसके बाद हम पहुंचे माया रूइंस की मोस्ट एस्टोनिशिंग बिल्डिंग साइट पर, एल कैस्टियो। चिचेन इट्जा मीन्स इन अ मायान माउथ ऑफ द वेल वेयर वाइस मैन ऑफ द वाटर लिव। मायान लोगों के लिए ये एक पोर्टल था जो इन्हें अंडरग्राउंड वाटर तक कनेक्ट करता था। एल कैस्टियो इज अ पिरामिड एंड ऑल्सो नोन एज द टेम्पल ऑफ कुकुलकान, जहाँ कुकुलकान एक माया देवता का नाम है जिसका मतलब है पंख वाला सांप। इस पिरामिड के टॉप पर एक टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है माया देवता कुकुलकान को। Each of the 4 sides of this pyramid has 91 steps, means 364 steps total, with the temple topping the pyramid considered an additional step, for a total of 365. It means each step represents a day in the Maya calendar. पिरामिड के नॉर्थ साइड पर 2 स्नेक हेड बने हुए हैं। यही रास्ता पिरामिड में ऊपर टेम्पल जाने का मेन रास्ता है। साल में 2 बार स्प्रिंग और फॉल इक्विनॉक्स के टाइम पर यहाँ पे एक स्पेशल नेचुरल फिनोमिना होता है, जिसमें आफ्टरनून में अराउंड 3:30 पर यहाँ पर सनलाइट पिरामिड के 9 कॉर्नर्स पर हिट करती है, जिस पे यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप बनती है जो नीचे जाकर के स्नेक हेड तक टच करती है। फॉर मायान दिस फिनोमिना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू देम the feather serpent god returning to earth to mark the beginning of the agriculture cycle. इसी के साथ अगर आप इस पिरामिड के सामने क्लैप करते हैं तो it produces an echo that sounds like a chirp or the call of a ikwesal bird, which is a sacred bird to the Mayans. इसी तरह से इस पिरामिड से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने विजिट किया द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉम्ब्स। इट कंटेन्स 3 चैम्बर्स वेयर ह्यूमन रिमेन्स वर फाउंड। ऑल ऑफ द रिमेन्स वर मेल। आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो फाउंड ब्रोकन वेसल्स, jade objects, shell ornaments, a copper rattle, and a rock crystal inside the chambers. इसके बाद हम लोगों ने विजिट किया द कॉम्प्लेक्स ऑफ द रेड हाउस, कासा कोलोराडा और अ रेड हाउस. It's a building in a small plaza. In this area is likely contains a residential complex associated with El Osorio. The Osorio is a temple similar to the temple of Kukulkan. It also known as the highest priest temple but smaller.
This building is made over a deep cave, and inside the cave, archaeological discovered 7 tombs with the human remains. आर्कियोलॉजिकल साइट पे आगे बढ़ते ही हमें लोकल वेंडर्स नज़र आए। यहाँ पर ये लोग अपने ट्रेडिशनल मैक्सिकन हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनियर्स बेच रहे थे। यहाँ पर जितने भी सामान बेचे जा रहे हैं वो सब मायान इंस्पायर्ड है, जैसे जैगुआर फिगर, जैगुआर विसल्स, स्मॉल टेम्पल रेप्लिकास, क्लोथिंग और भी बहुत कुछ। जैसे कि यहाँ पर एक टी शर्ट है जो कि प्लेन है, लेकिन सनलाइट में आते ही इसमें वाइब्रेंट कलर्स आ जाते हैं। इसके बाद हमने एंड में विजिट किया एल कोराकल। दिस इज एन ऑब्जर्वेटरी। एल कोराकल का स्पेनिश मीनिंग होता है स्नेल। इसमें ऊपर के बने टावर में स्पाइरल स्टेयरकेस होने की वजह से इसे ये नाम मिला। मायान इस साइट का यूज इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट प्रेडिक्ट करने के लिए करते थे, जैसे मूवमेंट ऑफ द स्टार्स and change of the seasons. And one of the most surprising aspect of the Caracal is how its window are aligned with Venus, a planet of the great importance to the Mayan, जिसे ये ज़्यादातर एसोसिएट करते थे वॉर और साइकिल ऑफ लाइफ से। यहाँ पर इसके बाद हमें हमारे गाइड ने 45 मिनट्स प्रोवाइड किए, जिससे हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर सकें और सोवेनियर्स परचेज कर सकें। इसके बाद हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाइडोलिड सिटी की ओर। इस सिटी का डिस्टेंस चिचेन इत्जा से अराउंड 44 मिनट्स का था। यह सिटी चिचेन इत्जा से सबसे क्लोजेस्ट टूरिस्ट सिटी है। रास्ते में बस से ट्रैवल करते हुए हमें मैक्सिको की बहुत ही खूबसूरत घर और वहाँ की लाइफ देखने को मिली, जिसे हमसे जितना हो सका हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया। रास्ते को एंजॉय करते हुए पता ही नहीं पड़ा हम लोग कब वाइडोलिड सिटी में एंटर हो गए, जहां पर हमारे लिए रीजनल बुफे बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में रखा गया था। Casona de Valladolid, the name very famous, muy famoso. La Casona de Valladolid is a very famous and well-known restaurant. They serve more than 70 mouth-watering local specialties dishes, along with some great vegetarian options. This beautiful restaurant situated in the heart of Valladolid. इस रेस्टोरेंट का ऑथेंटिक एटमॉस्फेयर और स्टनिंग आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है। इस जगह पर हमें हमारे गाइड से 1 आवर मिला, जिसमें हमें यहाँ लंच भी करना था और आप चाहें तो आसपास का कुछ एरिया भी कवर कर सकते हैं। हम लोग इस जगह पर लंच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि यह रेस्टोरेंट अपने लोकल और क्लासिक डिशेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ज़्यादा टाइम नहीं होने की वजह से लंच करते हुए ही हमने वाइडोलिड की कलरफुल स्ट्रीट को एंजॉय किया। लंच में जैसे कि मैंने आपको बताया था बुफे है। यहाँ पर खाने में ऑप्शंस भी पूरे थे, वेजिटेरियंस के लिए भी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी। खाने में जितने भी वेजिटेरियन ऑप्शंस थे उनमें से ज़्यादातर हमने ट्राई किए और नो डाउट खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। लंच फिनिश करने के बाद हम अपने बस तक वापस पहुँचे अगले डेस्टिनेशन के लिए। अपना लंच फिनिश करने के बाद हम पहुँचे सिनोटे एशकेकेन। ये वाइडोलिड सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पहुँचने में हमें आधा घंटा लगा। माया सिविलाइजेशन में कैनॉट्स का एरिया बहुत ही हाई रिगार्ड्स वाला होता था। इनका ज़्यादातर यूज़ ये एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर और रिचुअल साइट्स की तरीके से करते थे, और उसी ट्रेडिशन को यहाँ पर आज भी फॉलो किया जाता है। मायान लैंग्वेज में किंकिन वर्ड का मीनिंग है पेग। अकॉर्डिंग द लोकल्स, सिनोटे वॉज डिस्कवर्ड बाय द फार्मर हु वॉज फॉलोइंग हिज पेग, विच हैड मिस्टीरियसली डिसअपियर्ड इनटू द केव। यहाँ पहुँचकर हमारा गाइड हमें एक केव के अंदर लेकर गया, जहाँ पर हमें एंसेस्ट्रियल एक्सपीरियंस दिया गया।
मायान कल्चर के अकॉर्डिंग आप सिनोटे में एंटर होने के पहले नेचर और गॉड से परमिशन लेते हैं। तो वहाँ के एक सेक्रेट पर्सन के द्वारा कुछ मायान चैंट्स किए गए और कुछ रिचुअल्स फॉलो किए गए, जिसके बाद हमें सिनोटे में जाने की परमिशन मिली। आफ्टर दिस रिचुअल सारे विजिटर्स आगे बढ़ गए, बट बिफोर एंटरिंग द सिनोटे विजिटर शुड शावर टू वॉश ऑफ सनस्क्रीन और मॉस्किटो रिपेलेंट विच कैन हार्म द फ्रेजाइल सिनोटे इकोसिस्टम। जो सिनोटे में स्विम करना चाहते थे उनके लिए शावर लेना मस्ट है, मगर जो स्विम नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ नीचे जाके फ़ोटो क्लिक करवा कर वापस ऊपर आ सकते हैं। लाइफ जैकेट ऊपर ही प्रोवाइड कर दी जाती है और नीचे उतरने के लिए आपको 60 स्टेयर्स डाउन आना होता है। नीचे उतरने वाली स्टेयरकेस नैरो और थोड़ी स्लिपरी भी है, तो नीचे उतरते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर वाटर लेवल 20 मीटर्स डीप है and the walls that surrounded this cave are filled with some beautiful stalactite and stalagmite formations. This is a sinkhole in Mexico, around 15 to 20 meters deep. This is natural rainwater. यहाँ पर स्विमिंग के साथ साथ स्नॉर्कलिंग भी अलाउड है और यहाँ पर छोटे बच्चे भी स्विम कर सकते हैं विद लाइफ जैकेट। थोड़ी देर स्विमिंग करने के बाद हम लोगों ने इस जगह पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और थोड़ी देर यहाँ रुके। उसके बाद फिर हम लोग भी ऊपर आ गए। ऊपर आते वक्त हम आपको यहाँ की स्टेयरकेस दिखा सकते हैं। ये थोड़ी सी नैरो है, पर दोनों साइड पर यहाँ रस्सी बंधी हुई है जिसको होल्ड करके आप ऊपर और नीचे आसानी से आ जा सकते हैं। सिनोटे से बाहर आते ही हमें यहाँ के वो सेक्रेट पर्सन मिल गए जिन्होंने वो रिचुअल फॉलो किया था, तो उनसे हमने यहाँ के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। Means one pig. One pig. Years old. How many? 73 years. 73 years old. Yes. Yeah, thank you. Thank you. Have a nice day. अभी हमारे यहाँ से बस के निकलने में वेट था, तो हमने आसपास के सराउंडिंग में थोड़ा सा एंजॉय किया। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। चिचेन इत्जा माया रूइन से लेकर के सिंक होल विजिट करने तक डे थोड़ा लंबा था। पूरी जर्नी 12 घंटे की थी, लेकिन बहुत ही एडवेंचरस और मज़ेदार था। वापस अपने रिजॉर्ट हम 8 बजे पहुँचे। फ्रेश होकर के हम लोग डिनर लेने चले गए और उसके बाद हम लोगों ने अपना डे एंड किया। डे थोड़ा टायरिंग था पर एडवेंचरस भी था। होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। Turn around, sexy, turn around.